13 न्यूक्लियाई। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। जिन लोगों ने फिजिक्स को अभी तक इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया है या किसी कारणवश वो लेट हो गए हैं और अब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सबसे आसान चैप्टर है न्यूक्लियाई, चैप्टर नंबर 13। तो पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस कंपोज्ड होगा उसके एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो सीबीएसई एग्ज़ाम में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, राइट। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन चैडविक discovered the neutron. Proton and electron, who discovered the electron? Sir J.J. Thomson discovered the electron. And proton, that is Goldstein. तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के जो कंपोजिशन है वो फॉर्म करता है एक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है the theory states that composition of these three particles, it is electrically from electron, proton and neutron से। Now the size, what is the size? ये बहुत ही important question है इस टॉपिक का, साइज ऑफ न्यूक्लियस। इस पर एक न्यूमेरिकल भी आता है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस के लिए हम जाते हैं। न्यूक्लियस के साइज़ में कहा गया है कि ये उसका एटॉमिक नंबर है डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। सो साइज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज़ स्फेरिकल इन द साइज, सो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू proportional to A. This all are the constant, so RQ proportional to A. Now if you remove this proportionality from here, RQ is equal to R naught A, and that is if you take the cube root, so R naught A to the power 3, this is called the size of nucleus. From this topic one numerical also come, and it is very important for the theory purpose, gives you the 2 marks definitely. Now one question asked in CBSE sample paper also, and this is asked in the 2010 also. So express 16 mg mass into the equivalent energy in an electron volt. So we will convert this first. M is equal to, we have given 16 milligram. This milligram we will convert into the kg, 10 to the power minus 6. Okay, and speed of light c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now we'll use the formula m equal to mc square. The mass is 16 into 10 to the power minus 6 kg, right, into speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now this we are going to convert it into the electron volts. So the charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19, we will divide this number, okay, so that we got here, after cancelling from this, see that remove the decimal from here, 110 will come, 16 will here, so multiply after it 9 into 10 to the power 30 electron volt. Correct na? A simple question. Mass is given here 16 mg, will convert it into the kilogram. So 10 to the power minus 6 kilogram. Speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. E is equal to mc square. You'll put the value. After putting the value and cut short, that is 9 into 10 to the power 30 electron volt energy. Now here we will talk about the nuclear force. What is nuclear force? Very simple. The force act between the two nucleus, it's said to be the nuclear force. So nuclear force is have the separation or the average between the two nucleus is 10 to the power minus 13 meter. So at this separation, if we obtain a graph for the strongest interaction between the two nucleus and for the short range force, that is nuclear force is a short range force. If we see the variation with the distance with the
potential energy, so it is obtained the graph like this structure. This upper portion, it is for the repulsive force. It explain the repulsive force, and from there it explain the attractive force, and this is the potential energy. It is in the mega electron volt, and this is 3 into 10 to the power minus 13 centimeter. This is explanation of the nuclear force. But very important topic of this for this year, mass defect. What is a mass defect? The expected mass and the real mass. Expected, that means very simple. Suppose you think that in class 12th you are going for the 90%, so you think for the 90%, but actually your percent is 85. मास डिफेक्ट मतलब बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड मास है उससे रियल मास को सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, मास डिफेक्ट. सपोज इन 12th यू आर थिंकिंग फॉर द 90%, बट इन द रिजल्ट यू गॉट द 85%. सो योर एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज हाई and real is 85. So there is the difference. Like this, the expected mass, the difference of the expected mass to the real mass is called the mass defect. So mass defect, this is very simple. Suppose we have mass of proton, number of proton into mass of proton plus number of neutron into mass of neutron. We multiply of this, and here is mass of neutron also multiplied and added to both. From this number, if we subtracted, we got the real mass of the given atom. One question is given for the mass defect. Actually, either theory comes, either this numericals comes in the 3 marks. It is very important topic. So 20 calcium 40, we have given here the mass of calcium is 39.962589. This is the real mass of calcium. Now we have to find the mass defect. So see that here the 20, so here is 40. So in this case we have the 20 proton and 20 neutron in it. So mass of one neutron is 1.00865 and mass of one proton is 1.007825. So from here we will find the mass of 20 neutron, because here is a 20 neutron, so 20 multiplied by 1.008665. okay. Also you will find the mass of respectively 40 minus 20 is 20 here. तो यहाँ पर 20 प्रोटोनों का मास, प्रोटॉन का मास हम फाइंड कर लेंगे 1.007825 से. तो अगर हम इन दोनों का मास निकालेंगे, किसका, 20, मास यहाँ फाइंड करेंगे हम, इसमें 20 न्यूट्रॉन है, 20 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन. सो आफ्टर मल्टीप्लाई वी विल गेट 1733 20 पॉइंट. एंड सेम मास ऑफ 20 प्रोटॉन, सो 20 इंटू 1.007825 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 20.565 आएगा. और इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो ये हमारा मास आ जाएगा यहाँ से 40.3298. बट रियल मास दे हैव गिवन 39.96, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे 0.36721 AMU. ये हमारे पास आ जाएगा मास डिफेक्ट. तो ये AMU में है. अगर इसको हमें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना है या इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है हमको, सपोज इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 931 का मल्टीप्लाई और कर लेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 931. ओके, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इफ मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 341 पॉइंट MeV 46 ओके 87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कन्वर्ट हो गया हमारा एनर्जी में. ये आपको यहाँ तक निकालना बोर्ड एग्जाम में मास डिफेक्ट आएगा, क्योंकि अभी रिड्यूस सिलेबस में ये मास डिफेक्ट तक के लिए है. तो ये मास डिफेक्ट निकाला अपन ने. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न. तो फ्यूज़न मीन्स क्या हुआ बेटा, कंबाइंड, फ्यूज़ होना. तो जब 2 or more than 2 atom of a small nuclei combined or fuse and they form a big atom, such is called the nuclear fusion. And now another one we have the nuclear fission. Fission means when a big atom or the heavy atom broken down into the small or daughter nuclei atoms
is called the nuclear fission reaction. A very important things for this fusion reaction, the temperature is very high. We require the high temperature, nearly 10 to the power 7 Kelvin temperature. And the fission reaction, it is done at the ordinary temperature. What temperature we have now? तो ये सामान्य टेम्परेचर पर जो फिशन रिएक्शन है वो हो जाती है, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है ना। फ्यूज़न जो है, न्यूक्लियर फ्यूज़न में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि फिजन में आपको फ्यूजनेबल सब्सटेंस जो रहेगा वो फिजन के लिए सब्सटेंस कौन सा रहेगा? रेडियो एक्टिव रहेगा। फिजन पर एटम बॉम्ब बेस्ड है, एटम बम जो है वो फिजन रिएक्शन पर बेस्ड है, और अबाउट 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज होगी ड्यूरिंग दिस फिजन रिएक्शन। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो फ्यूज़न में तो हमने देखा था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमको उसमें नहीं चाहिए है ना। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो फ्यूज़न रिएक्शन पर बेस्ड है और 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो निकलती है। अगर हम फ्यूज़न में देखते हैं तो हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एमपी बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड राइट इट्स अ प्रिंसिपल ना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ अ डिवाइस विच इज़ बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन एंड ऑब्टेन टू enormous energy for the constructive purpose। न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस है उसके प्रिंसिपल पर कौन काम करेगा बेटा? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। और फिजन क्या रिएक्शन है? फिजन कि जब बड़ा एटम जो है टूटता है अपने 2 छोटे छोटे पार्ट्स में, ओके, तो वो फिजन है, राइट। तो फिजन पर ये बेस्ड है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि मेन पार्ट्स क्या हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के जो मेन पार्ट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें फ्यूल, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसमें फ्यूल। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसमें मॉडरेटर। तो जो फ्यूल है उसमें 92 यूरेनियम 235 का यूज़ कर लेते हैं। अगर 92 यूरेनियम 235 यूज़ नहीं हो रहा है तो 94 PU 239 को भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फिर इसका सेकंड पार्ट होता है मॉडरेटर, MODERATOR, मॉडरेटर। तो मॉडरेट मीन्स टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। मॉडरेटर क्या है कि जो न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए उसमें हैवी वाटर D2O का यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों ओर सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। अगर D2O नहीं है तो इसमें ग्रेफाइट है, बेरिलियम ऑक्साइड है, यूज़ किया जाता है मॉडरेटर के लिए। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है कंट्रोलर। टू कंट्रोल द रेट ऑफ फिजन रिएक्शन इन ए रिएक्टर, जो कैडमियम की राड होती हैं उसको उसके साथ इंसर्ट कर दिया था उसकी दीवार में। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारे पास, सपोज ये न्यूक्लियर रिएक्टर, इसकी दीवार में कैडमियम की जो राड है उनको चारों तरफ लगा दिया जाता है, जिससे कि न्यूक्लियर जो आपका फिजन है उसके रेट को कंट्रोल किया जा सके। फिर आता है कूलेंट। अब जब बहुत सारी एनर्जी निकलती है तो न्यूक्लियर रिएक्टर गर्म होगा, राइट, तो हीटेड अप होगा इसको, है ना। तो कूलेंट क्या होगा कि उसको ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को, एयर को, राइट, वाटर को कूलेंट के लिए इसमें यूज़ किया है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सील्ड रिंग। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस बाहर आते हैं, उन रेडिएशंस को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को चारों तरफ से सील्ड कर देते हैं। इसमें कंक्रीट की जो दीवार है वो चारों तरफ से बना दिया जाता है इसको, तो उसको चारों तरफ से सील्ड कर दिया जाता है। ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डायग्राम भी आप बनाइए, बुक में इसका डायग्राम बहुत बढ़िया दिया हुआ है। तो यहाँ हम बात करेंगे ब्रीडर रिएक्टर की। व्हाट इज ए ब्रीडर रिएक्टर? तो ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है बेटा? अ ब्रीडर रिएक्टर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मोर फ्यूजनेबल न्यूक्लियाई देन इट कंटेन। मतलब जो हमारा 92 यूरेनियम है उसमें बहुत ही कम मात्रा में 0.7% जो है फ्यूजनेबल या फिसेबल हम जिसे बोलेंगे पार्ट होता है, ठीक है ना, यूरेनियम में। तो ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है? इट कंटेन 99.3% ऑफ नॉन फीसेबल हु 92 यूरेनियम। तो ब्रीडर रिएक्टर वो रिएक्टर होता है जो प्रोड्यूस करता है मोर फ्यूजनेबल
न्यूक्लियाई देन इट कंटेन। तो अगर 92 यूरेनियम 238 कि हम प्रोसेस कराएंगे ब्रीडर रिएक्टर में, तो हमारे पास 93 Np ओके एंड 94 Pu बनेगा, राइट। यहाँ पर तो Pu मीन्स प्लूटोनियम बनेगा आपका। तो ये प्लूटोनियम है वो मोर फिशनेबल अपने साथ में सब्सटेंस को वहाँ पर रखेगा। तो ये ब्रीडर रिएक्टर का ये काम होता है कि कम ब्रीडर रिएक्टर दैट मीन्स an alloy of sodium and potassium is used as a coolant in the breeder reactor में, क्योंकि ये भी गर्म होता है तो इसे कूल करने के लिए जो है alloy of sodium and potassium का यूज़ करते हैं। तो ये हमने देखा चैप्टर नंबर 13 में, जिसमें हमने न्यूक्लियस पे बात करी। न्यूक्लियस दैट मीन्स इट कंपोज बाय द न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। सबसे इंपॉर्टेंट एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो आपका आंसर होगा चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, गोल्डस्टीन। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। और फिर इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट अभी हमने देखा था कि जो एक्सपेक्टेड मास है वो ऑलवेज हाई होता है, ज़्यादा होता है। तो एक्सपेक्टेड मास से हम रियल मास को अगर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है किस पर, कि प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन हमेशा इसमें मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और हमेशा प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन का मल्टीप्लाई करना, दोनों को ऐड करेंगे और उसको रियल मास से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। मास डिफेक्ट के बाद अगर आपको उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है MeV में, राइट, तो 931 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे। एक्चुअली वो बाइंडिंग एनर्जी के लिए आएगा, वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी हम निकाल सकते हैं इसमें। फिर हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स का भी हमने ग्राफ देखा था, नीचे अट्रैक्शन होगा, ऊपर इसमें रिपल्सन होगा। तो ये आपको तैयार करना है, दोनों ही टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू।